آئے عبادت کا آغاز کریں شاعر بانی کی ترتیب کی کتاب صفحہ نمبر 1 پر سے۔ آئے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کا دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بے چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سنا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ پہلا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تیری محنت کرتے ہیں اے عزیزو، ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئیں ہم سب خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آئیں۔ سب کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن آراسی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری محنت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی خدا یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح سے گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ہم سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آئے ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں، خداوند کا شکر ادا کریں۔ زبور نمبر 111 ہم گائیں، شاپر کراچی کی کتاب زبور نمبر 111۔ تسی گاؤ سلام تسی رکھنی۔ سب کھڑے Sana
आज के दिन के लिए खुदा ने फिर मुझे और आपको ये मौका दिया कि हम आज का दिन खुदा उनकी हुजूरी में गुजारें, उसका शुक्र करें, उसकी बरकत के लिए, उसके फजल के लिए, उसके रहम के लिए, उसके तरस के लिए उसने मुझ पर और आप पर तरस खाया और हमें जिंदगी दी। कोई भी दुआ कर सकता है चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी कीजिए। हम शुक्रगुजार हैं इस मौके के लिए, इस टाइम के लिए, इस घड़ी के लिए, तेरे पाक शब्द के लिए तूने जिंदों की जमीन में रखा है। उन लोगों से छेड़ा से जिनको तूने अपने पास बुला दिया है। तेरा प्यार है, मोहब्बत है, शफकत है कि तूने जिंदों की जमीन में रखा है। अपने लहू का मसा दे, हमें हिम्मत ताकत दे, तेरे नाम को दूर दूर तक फैला सके और तेरे नाम की जय जयकार कर सके। ये सुनासी जितने लोग तेरे घर में आ चुके हैं, इन सबको अपने पाप लोभ से विनाश कर, इनके सारी घर की परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को यसु मसीह जाती ने है और इनको अपने पाप लोभ से बचा कर, अपनी रहमत कर, अपना कर्म कर,
जितने लोग अस्पतालों में घरों में जाके बीमार हैं उन सबको शफा दे, तंदुरुस्ती दे, अपनी रहमत कर, अपना कर्म कर, कुलैर के साथ हो, उस्ताद के साथ हो, उन ताबियों को ऊपर वाला माल कर, तेरे नाम में बड़े बड़े जलाल पाए। आज का पाक नाम से सलाम लेते हैं। ऐ यीशु मसीह अपनी रहमत कर, अपना कर्म कर, अपना फजल कर, जितने बीमारों को शफा तंदुरुस्ती दे। ऐ यीशु मसीह जहाँ कहीं भी तेरी बातें हो रही हैं अपनी रहमत अपना कर्म कर, मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। गीत नंबर 359 है 359 गीतों की किताब में जो आपके हाथ में है, शाकुर करन संगीतों की किताब, गीत नंबर 359 359। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। सब कोई साथ में खुदा की तारीफ करें। हम सब पढ़ें मुक्ति दिलाई यीशु नाम। याकूब इस्माइल कुकूर की पूरी फैमिली ने आप सबके लिए सलाम भेजा है। सल्तनत ने आज के दिन को याद किया है कि आज के दिन चूँकि वैलेंटाइन डे है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, और हम भी खुदा का शुक्र अदा करें आज के दिन के लिए। वो मोहब्बत जो खुदा जिस मसीह ने मुझसे आपसे की, इस मोहब्बत का इज़हार हमें एक दूसरे के साथ करें। दुआ मांगे, कोई भी दुआ कर सकता है। शुक्रगुजारी कीजिए उन तमाम ख़ानदानों के लिए जो बैरून मुल्क हैं, जो बच्चे तालीम इल्म हासिल करने के लिए गए हैं, उनके लिए, जो लोग बीमार हैं, जो कमज़ोर हैं, जो गमज़दा हैं,
جو مشکل میں ہیں, جو پریشانی میں ہیں, خدا ان کی پریشانیوں کو خوشی میں تبدیل کرتا ہے. کوئی بھی دعا کر سکتا ہے. آج میرے آسمانی زندہ مقدس پاک خدا قدم تو بتایا تیری شفقت اور تیری وفاداری تجھ پر خوش رہتی ہے. تیرے خزانے لبریز ہیں, تیرے پاس کس چیز کی کمی نہیں ہے. تو سب کچھ کرنے کا قادر باپ, ہمارا پیدا کرنے والا اور انسان ہے. تمام طریقے تیری ہیں. اس وقت تیرے سامنے ہوتے ہیں, آپ کو سجدہ کرتے ہیں, بے قبول و مظلوم آپ کے رحمت اللہ سے بول جاتے ہیں. زندگی کی تمام بڑی برکات کی طرف میں مانگے دعا بخشی. تمہیں سب سے بڑھ کر اپنا زندہ تمام بخشا, اپنے بیٹے کو تم نے بھیجا تاکہ ہم ملاق نہ بلکہ بے شک زندگی پائیں. آپ سے خدا تیرے بھائی فضل کے لیے تیرا شکر, تیری تعلیم کے تنظیل ہو, تیرا شکر جاتے ہیں تیرے تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت تیرے گھر میں موجود ہیں. خدا ایک ایک کو برکت دینا. آپ کے خدا جتنی منا جاتے بادشاہ تیرے سامنے رکھتی ہیں ان کو سننا اور قبول کرنا. آپ کے خدا جو لوگ بزرگ ہیں اس مقصد کے لیے گئے ہیں, خدا ان کے مقصد میں ان کو کامیابی دینا. خدا ایک ایک کی رہبری رہنمائی کرنا. تیرا فضل والا ہاتھ سب پر پڑا رہے. آج پوری دنیا میں جہاں تک تیرے نام سے تیرے لوگ خدا تیری عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنا فضل والا ہاتھ بڑھانا, کو سے مال کرنا. آج کا جو تیرا چھوٹا کلام پیش کیا جائے تو سب کے لیے باعث برکت ہو. تمہاری رہنمائی کرنا, ہر آنے والی مشکل مصیبت پریشانی سے کرنا. خدا سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے, آمین. آج صبح ہماری نصیحت کے لیے جو کلام مقدس کے 3 حصے ہیں نوٹ کیجیے. آج کا پہلا گرد پرانے احکامہ سے یشعیاہ نبی کا صحیفہ. بائبل کھولیں کیونکہ آج ہم غلط تعلیموں کے بارے میں بھی دیکھیں گے سونے کے کہ غلط تعلیم کیا ہے. اس لیے حوالہ نکالیں. بائبل وہاں پہ بہت پڑھی ہیں, کھولیں تاکہ آپ کو یاد ہو اور گھر جا کے پڑھیں. میں آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں. جو لوگ بائبل لینا چاہتے ہیں شاید نے ادھر بائبل پڑھی ہے. یشعیاہ نبی کا صحیفہ نکالیں, 4تھا باب. جو یہاں بائبل پڑھی ہے پرانی بائبل, اس میں صفحہ نمبر 663 663. اور جو نئی بائبل ہے اس میں صفحہ نمبر 846 846. یشعیاہ نبی کا صحیفہ 4تھا باب, 2 آیت سے 6 آیت تک. کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ کوئی خاتون؟ چلے مسز ارنسٹ آپ پڑھیں گے. حوالہ دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یشعیاہ نبی کا صحیفہ 4تھا باب, 2 آیت سے 6 آیت. پرانی بائبل میں صفحہ نمبر 663 اور نئی میں 846 846. آج کا دوسرا ورد کرنتھیس کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا پہلا خط, پہلا کرنتھی 11واں باب, 2 آیت سے 12ویں آیت. پرانی بائبل میں صفحہ نمبر 162 جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں. جو نئی بائبل ہے اس میں صفحہ نمبر 234. چھوٹی بچی آئی ہے وہ یہ پڑھے گی حوالہ. اس کے بعد ہم گیت گائیں گے. گیت نمبر 205. تیرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا, کھول دے تو دروازہ, وہ ہے آنا چاہتا. 205 نمبر گیت ہے سیاق قرآن گیتوں کی کتاب. اس کے فوراً بعد انجیل مقدس کی کلاس سنیں گے. مقدس مرکز کا انجیلی بیان. پہلا باب 40ویں سے لے کر 45ویں. صداد آپ اس پیسج کی دعوت کریں گے. صفحہ نمبر 35 ہے پرانی بائبل میں, اور نئی بائبل میں صفحہ نمبر 50. دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں, آج کا جو تیسرا ورد ہے انجیل مقدس کی تلاوت. مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل, پہلا باب 40ویں آیت سے 45ویں آیت. میرے ہاتھ میں چند ضروری اشتہارات ہیں. لینٹ سیزن شروع ہو جائے گا, اور نئے کپڑے بھی چینج ہو جائیں گے. سامنے پرپل
तौबा की निशानी के दिन, अपने आप को तब्दील करने के दिन, अपने रवैयों को बदलने के दिन। लेंट सीजन का आगाज बुध की शाम हम इबादत करेंगे 5 बजे, और हम कोशिश करेंगे कि आप सबके लिए रोज़ा खोलने का भी इंतजाम हो, आपकी खिदमत करेंगे हम लोग। अगर उस शाम के खाने के लिए आप में से कोई लोग अपने हदिया देना चाहते हैं, शुक्रगुजारी खास देना चाहते हैं, शुक्रगुजारी दिया करें। दिया करो तुम्हें भी। पिछले दिन एक हादसा हुआ, हमारे अपने ही नौजवान थे, बहुत बुरे तरीके से, लेकिन खुदा ने बचाया। कल गया के घर, मैंने कहा ये हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, गौर से सुनना मेरी बात, कि भाई दिता काम आता है ना, की काम आता है, वो कहा आपने हदिया दिया, वो कहा आपने वक्त दिया, दुआ किया, और आपके बुजुर्गों की बड़ों के पीछे दुआएं जिसकी वजह से खुदा ने आपको बचाया। सो मैं अक्सर नौजवानों से कहता हूँ, मैं अपने बेटे से कहता हूँ कि यार ड्राइविंग आराम से किया करें। जब आप आराम से चला रहे होंगे आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप बगैर सोचे समझे बिला खौफ करेंगे फिर गाड़ी कंट्रोल भी नहीं होती। मेरी और आपकी जिंदगी की गाड़ी भी ऐसी है, सुन लें, इसका पता नहीं है, चोट लग जाए ना, बंदा बीमार हो जाए, चोट लग जाए, बंदा ठीक हो जाता है, जिंदगी चली जाए वापस नहीं आती। नौजवान इस बात का ख्याल नहीं रखते। मेरी दरख्वास्त है आप सबके साथ, चंद दिन हुए हैं, 15 दिन पहले सियालकोट से वापस में आ रहा था मोटरवे पे, एक जवान गाड़ी चला रहा था, पैक थी गाड़ी, साथ वाली दीवार पे बस टच हुई है, जो डिवाइडर होता है दरमियान में, बिखर गई थी पूरी फैमिली, रोड पे बिखर गई थी। क्यों? तेज आ रहा था। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, जब मैं बाहर जाता हूँ अपनी गली को देखता हूँ, दूसरी गलियों को, कल मैं और ब्लॉक की गली में गया था, गुजरने की जगह नहीं, हर घर के आगे गाड़ी खड़ी है, शुक्रगुजारी है ना, खुश है। लेकिन अगर खुदा ये चीज़ें देता है तो फिर हमने इस्तेमाल उनको अच्छी तरीके से अक्लमंदी से करना है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। सो आप जरूर मेरी बात को नोट कीजिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेंट सीजन शुरू हो जाएगा, आपने इस पूरे लेंट में अहद कर लेना खुदा से कि मैंने अपनी सोच को बदलना है, अपने रवैये को बदलना है। अगर मैं बहुत तेज गाड़ी चलाता हूँ, किसी की परवाह नहीं करता, तो आस्ता चलानी है, सीख लें जब आती, जिंदगी दोबारा नहीं आती। राका बुद्ध हमें हलीमी सिखाता है, आकड़ नहीं सिखाता, मगरूरी नहीं सिखाता। इसीलिए ये जो पर्पल कलर आ जाएगा, हलीमी, आज बुध की शाम हम इबादत करेंगे, आपके लिए खाने का इंतजाम करेंगे। मैं इंतजामिया से दरखास्त करता हूँ ताकि आप लोग इबादत के बाद शेयर कर सकें, हमारे साथ रफ़ाकत रखें, और आप सब जो हदिया देना चाहते हैं, शुक्रगुजारी देना चाहते हैं, ज़रूर इसमें हिस्सा डालें। ख़वातीन की जो इबादत, रफ़ाकत ख़वातीन की इबादत होती है, जुमेरात को शुरू कर दें, कमिंग संडे से, कमिंग जुमेरात से, क्योंकि आप जुमेरात की शाम करती हैं। टाइम 4 बजे, ठीक है, 4 बजे किया करें। अच्छा मौसम आ रहा है, मौसम बहार शुरू हो गया, ये बहार का मौसम आ गया, तो बहारें ज़रूरी होनी चाहिए शख्सी ज़िंदगी में, ख़ानदानी ज़िंदगी, चेहरों पे भी बहार आनी चाहिए। छोड़ दे सारी बातें। फिर इसके बाद आज चूंकि वैलेंटाइन डे है, इसको मोहब्बत का दिन कहते हैं, प्यार का दिन कहते हैं। ये प्यार माँ बाप के साथ, बड़ों बुजुर्गों के साथ, खानदान के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ, इसका इजहार, इसके इजहार के बड़े तरीके हैं। कुछ लोग अपने स्टाइल से करते हैं, उसको रहने दें। अनाउंस हो रहा था आज कि कोई कपल देखा गया ना किसी जगह मार के इधर उधर, वो पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ खुशी से करें, अपने घर से शुरू करें, माँ बाप से करें, बहन भाइयों से करें,
यसु मसीह ने तो हमसे इतना प्यार किया कि अपनी जान दे दी। ये दिन अच्छे हैं, वैसे हमें टाइम नहीं मिलता, सेलिब्रेट करने चाहिए ये दिन। पूरी दुनिया में आज बनाया जाए ये दिन, और ख़ास दिन जिन लोगों की आज शादी भी आया, भाई बनवर आए उनके बेटे की शादी है, वो ये तो उनकी यादगार दिन रहेगा ना, जिसकी शादी वैलेंटाइन डे वाले दिन हो। हम लोगों को भी याद करते हैं जो लोग मुश्किल में हैं, आए हम उनके साथ मोहब्बत का इज़हार जाके करें, जो बीमार है उन्हें जाके दिलासा दें। शादियों में लिफाफा लेके जाते हैं, बीमार के लिए लिफाफा नहीं लेके जाते हैं। शादी के लिए जाना होता है, मैं जाना नहीं, जिन्हें रहता है लिफाफे में आप चला है, ठीक है। तो बीमार के लिए जब जाते हैं जिसकी जरूरत होती है तब नहीं हम ऐसा करते। इसलिए ये है ना मोहब्बत का इज़हार। जाए किसी बीमार के पास, जाए किसी कमजोर के पास, आज जाए किसी परेशान शख्स के पास जिनके हालात ठीक नहीं है, उनके घर जाए, उन्हें जाके मोहब्बत का इज़हार उनके साथ करें, प्यार का इज़हार करें। आज इबादत के बाद 1 बजे हम 1 डिश करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने नाम दिए हैं, क्या आप आगे नाम मिल गए हैं? चलो घर से बना के ना, ये भी मोहब्बत का इज़हार है कि आप अपने घर से खाना अपने ले लें, दूसरों के लिए बना के लाएं। ये प्यार का इज़हार है, ये मोहब्बत का इज़हार है, ये हम एक दूसरे को इज्जत देते हैं। तो जितने लोगों ने नाम दिए हैं हमको पता है, आप आए, हम सब आज इबादत के बाद रफ़ाकत रखेंगे। आज के जो हवाले हैं वो हम देख रहे हैं, और फिर उसके बाद छोटी सी क्लिप है, वह इंतखाब आप दिखाएंगे, क्योंकि जो हवाला ये छोटी बच्ची, क्या नाम है बेटा आपका? इफ्रा। इफ्रा ने पढ़ा जो हवाला वो आपने गौर से सुना, ठीक है। उसका तलक इस स्क्रीन पे जो तस्वीरें आएंगी ना उसके साथ है। तो आज हम पहले जितनी 1 डिश हमने की हैं उनकी भी कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं, वो भी हम इबादत के बाद आपको दिखाएंगे। तो शहरबानी लेके भाग न जाया करें, ये हमारी बहुत गलत आदत है कि शहरबानी में शरीक होते हैं, सीधी दर बाहर बैठा करें, शुक्रगुजारी की दुआ में हिस्सा लिया करें, जो कलमात बरकत के होते हैं ना उनके साथ रुखसत दुआ करें। रुखसती जब की जाती है तो वो बरकत के साथ की जाती है। तो आप इंतजार थोड़ा कर लिया करें, 5 मिनट की बात होती है। अच्छे लोग हैं, जिंदगी को साथ बनाने के लिए 4 बातें मैंने सिखाई हैं, अगर किसी को याद हो पहले ही बता दें। जिंदगी को आप आसान बना सकते हैं दुआ करके, सब्र करके, वेरी गुड, इस पर मैं जोर देता हूँ, सब्र करके और माफ करके। काश कि आज मोहब्बत की तरह माफ कर दें एक दूसरे को। चौथी बात, नजरअंदाज करके एक दूसरे की गलतियां, एक दूसरे के कसूर नजरअंदाज किया है और आगे बढ़े, देखिए खुदा बरकत देगा। आइए हम आज का पहला वाला सुनते हैं, ये शायरी का सही पाठ शानदार होगी और जमीन का फल उनके लिए जो बनी इसराइल में से बच निकले लजीज और खुशनुमा होगा। और यूं होगा कि जो कोई सयून में से छूट जाएगा और जो कोई यरूशलेम में से बाकी रहेगा, बल्कि हर एक जिसका नाम यरूशलेम के जिंदों में लिखा होगा मुकद्दस कहलाएगा। जब खुदावंद सयून की बेटियों की गंदगी को दूर करेगा, यरूशलेम का खून रूह अदल और सुजान के जरिए से धो डालेगा, तब खुदावंद फिर कोए से उनके हर एक मकान पर और उसकी मजलिस गाहों पर दिन को बादल और धुएं और रात को रोशन शोला पैदा करेगा। तमाम जलाल पर एक साइमान होगा और एक खैमा होगा जो दिन को गर्मी में सायादार मकान और आंधी और झड़ी के वक्त आरामगाह और पनागाह की जगह होगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आज का दूसरा मैं तुम्हारे करीब करता हूँ कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो, और जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुँचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। जो मर्द सर ढंके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बेसर ढंके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सरमंदी के बराबर है।
अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए। अगर औरत का बाल कटना या सर मुंडाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। अलबत्ता मर्द को अपना सर ढंकाना ना चाहिए क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है, इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है, और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई। बस फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे, तो भी खुदावंद मेरी ना औरत मर्द के बगैर है ना मर्द औरत के बगैर, क्योंकि जैसे औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीला से है, मगर सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं। कलाम पाक की तरफ से। गीत नंबर
सुनेंगे। हमारे लिए आज की तीसरी तलावत मुकद्दस मरकज़ रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब 40वीं आयत से लेके बाब के आखिर तक। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और फिर फौर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फिर फौर रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने तईन काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीज़ों को जो मूसा ने मुकर्रर की हैं नजर गुजरा, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और इस बात को ऐसा मशहूर किया कि यस्सु शहर में फिर ज़ाहिरन दाखिल ना हो सका, बल्कि बाहर वीरान मकामों में रहा और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। शहरवारी की तरतीब की किताब हम सब अपने ईमान का इकरार करेंगे और मिलकर करेंगे, मैं ईमान रखता हूँ एक बाप जो आसमान ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदा यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, खुदा से बेशतर, अपने बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसलूम नहीं बल्कि मौजूद, उसका बाप का एक जोहर है, उसके वसीला से कुछ चीज़ें बनी, वो हम आदमी के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतराया, और उसकी कुदरत से हमारी बड़ी से और इंसान बना और उसके अपने हमारे लिए हुआ, उसने उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नबियों के बावजूद जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। बाप के अंदर बैठा है, जो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिराने वाला है, उसकी सत्ता खत्म होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर जो खुदा को जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सादर है, उसकी बाप और बेटे के साथ तस्वीर होती है। वो नबी की ज़बानी बोला, मैं एक बाप आम सूली की दिशा पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ और मतलब के जहान की हयात का इंतजार करता हूँ। आसमानी बाप बड़ी आजिज़ी इनकसारी हलीमी फरोतनी के साथ तेरे खौफ में रहते हुए तुझसे इल्तिजा फरियाद मिन्नत करते हैं, कलाम को समझने के लिए और सही तालीम को अपनाने के लिए अपने पाकों की रहनुमाई अता फरमा, ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक उन बातों को, उन चीज़ों को, उस आइन को, उन अहकामात को, उन हदायत को अपना सकें जो हमारी ज़िंदगी के लिए बरकत का सबब ठहरे। पूरी कलीसिया पर तेरी बरकत चाहते हैं और आने वाले वक्त में इन सबको ढेरों खुशियाँ दे। अपने खादिम के मुँह में भी अपना कलाम खुदा बाप बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ, आप सबको वेलकम करता हूँ। आज हमारे भाई नई बरकत जिन दिनों ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में हैं, फैमिली के लोग भी बैठे हैं, उन्हें भी वेलकम करते हैं। आप सबको भी अगर कोई गेस्ट आए तो उनको भी हम वेलकम करते हैं जो आज पहली दफ़ा हमारे साथ इबादत कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि आज का दिन आप सबके लिए बरकत का बायस है। इफ्तारी जो हवाला पड़ा है उसके मुताबिक पहले ये मैं क्लिप आपको दिखाता हूँ, सिर्फ एक आयत पढ़ के कि आज के दौर में कितनी गलत तालीमें हमारे यहाँ मौजूद हैं। सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा और फिर दूसरी पे जाऊंगा। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ खुदा का खादिम,
मुकद्दस पौलुस रसूल कलीसिया को कह रहा है, मैं भी आपकी तारीफ करता हूँ, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो, जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुंचा दी, तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। हमें लोग कहते हैं ये रवायती चर्च है, हाँ हैं, लेकिन आज जो गलत तरीके हैं उन पर गौर कीजिए। खुदा के कलाम में लिखा है, जो मर्द सर ढके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बेसर ढके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है। बेहुरमती आज के दौर में बहुत हो रही है, गलत तरीके आ गए हैं। आपने ये क्लिप सुनना है, देखना है कि हमारे इर्द गिर्द कितनी गलत तरीके हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। गौर से सुनना और फिर आपने फैसला करना है कि आपने इधर उधर नहीं भागना, गलत तरीन को रद्द करना है। जी चलिए शुरू करें।
आप जितने लोग चर्च में बैठे हैं, पीछे से लेकर आगे तक, कितनी बरकत मिली है आपको? बताएं मुझे जरा। ये खड़े हो किधर आता है? खड़े हो, सुने सुने सुने। ये जो कलाम सुना रहे हैं गुस्सा आ रहा है हमें। थैंक यू, थैंक यू। मैं खुदा का खादिम होते हुए, खुदा के खौफ में रहते हुए, डरता हुआ से अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ। क्या बरकत मिली है? फिर आकर तो आज बड़ा मसासी होते, बड़ा ही मसासी, बड़ी बरकत मिली। क्या बरकत है मुझे ये बताएं। ये दूर की बात नहीं है, आपके इर्द गिर्द है। मैं आपको गलत तरीकों से बचाना चाहता हूँ। मैं आप सबसे दरखास्त करना चाहता हूँ, मैं आपसे मिन्नत करना चाहता हूँ, अपने चर्च को ना छोड़ के उधर जाए। आपका दिमाग खराब कर देंगे वो, नफसियाती तौर पे आपको पागल बना देंगे, आप जहनी बीमार हो जाएंगे। यही आयतें मैं दोहराऊं यहाँ पे। खुदा मुझे और आपको कहता है कि इंसान, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैंने तो तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा। वही बात दोहराई जा रही। गिरने का क्या मतलब है? आपने देखा हालत कैसी थी? गिरते हुए क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोग जाते हैं ऐसी बात, तो मैं आपको बता दूं, मैंने जानबूझ के आपको दिखाई है। पास्टर, मुझे को पास्टर कहता ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे कभी पास्टर ना कहना, मैं आप सबके साथ ही कहना चाहता हूँ। ये वो लोग पास्टर, इन्होंने शुरू किया ये लफ्ज, पास्टर का लफ्ज मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन इन्होंने इस लफ्ज को बदनाम करके रख दिया। इन्होंने मसीही अक़दार की धज्जियां उड़ा दी। इन लोगों ने हमारे निजात के पैगाम को बदनाम कर दिया है। आपने इनसे बचना है। मैं आपका खादिम, खुदा का खादिम, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका पासबान होते हुए दोहराना चाहता हूं इन्हीं बातों को कलाम में। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो। जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुंचा दी, तुम उसी तरह उन पर बरकरार रहो। जो हदें हमारे बाप दादा ने मुकर्रर कर दी हैं, उन्हें न सरकाएं, न उन हदों को पार करें। ये लोग हदें पार कर गए, बदनाम कर रहे मसीहत को। उसमें अगर आके जाके आप शामिल होंगे तो आप भी उन्हीं हिस्सेदार होंगे। बचा करें ऐसे लोगों के। ये बिदअत है, ये गलत तरीन है, ये कर्स है, ये कलाम को ट्विस्ट करते हैं। कभी इन लोगों की बात में ना जाए। दूर नहीं है, ये करीब करीब ही आपके। इनसे बचे। कौन आजाद करता है कि हम ऐसी गलत तरीकों के पीछे नहीं जाएंगे? हाथ दिखाएं, हाथ दिखाएं। जिसका नहीं हाथ खड़ा होगा, इसका मतलब यह है कि आप ऐसे लोगों के साथ प्यार करते हैं और चाहते हैं कि आप जाएं। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जो कुछ आप सीखेंगे वही सिखाएंगे। ये बिना सीखे सिखा रहे हैं। इन्होंने तालीम नहीं हासिल की, इन्होंने सरगर्मियां नहीं की। बिना सीखे सिखाएंगे तो आग लगाएंगे। आग लगी हुई है, देखिए क्या स्टाइल है बोलने का। उम्र तो देखा आपने वहां पे। मैं इसलिए बहनों से कहना चाहता हूं, खोले आज का पहला हवाला, जिस साल का सेवा खोले जरा। मैं इस पे बहुत ज्यादा बोल सकता हूं, लेकिन चंद बातें इशारा आज दिया, फिर इसके बाद फिर और दिखा दूंगा। यरूशलेम रोटी का घर, सलामती का घर। हमारे पास सलामती का पैगाम है, हमारे पास ये अब्तरी का पैगाम नहीं है। खुदा तो अमन का बानी है, अब्तरी का नहीं है। यह तो अब्तरी फैली हुई थी, एक के ऊपर दूसरा गिरा हुआ था, ना उनको कपड़े की परवाह थी। क्या कर रहे हैं लोग? क्यों अपने के पीछे जाते हैं? क्यों पैसे लोगों के अंदर से खैर कोई गलती कलाम कलाम सुना रही थी, नबूवतें कर रही थी। वो क्या नबूवत? उनको तो ये पता नहीं नबूवत है क्या चीज।
یہ سارے نبی کا صحیفہ نکالیں، گھر میں دوبارہ پڑھنا۔ جب ایسے حالات ہوتے ہیں پھر بربادی ہوتی ہے، وہ خواہ کوئی بھی جگہ ہو، یروشلم میں بھی بربادی ہوئی ایسے لوگوں کی وجہ سے۔ تب خداوند کی طرف سے رویدگی، کومپل، خوبصورت اور شاندار ہوگی، کومپل زینت دار ہوگی۔ یہ بھی پتے سارے جھڑ رہے ہیں نا، نئی کومپلیں نکل رہی ہیں، خوبصورت لگتی ہے، زینت ہوتی ہے درخت کی، ہم خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ جو نئی نسل سامنے کھڑی تھی، جوان تھی نا لڑکیاں، یہ کیا تعلیم دیں گی جا کے گھروں میں لوگوں کو؟ اسی وجہ سے بربادی ہوئی تھی یروشلم کی۔ میں پیچھے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اسی باب کی پہلی جو میں نے نہیں پڑھی تھی۔ ایسے ہوا کہ ان کی وجہ سے بربادی ہوئی۔ اس وقت 7 عورتیں ایک مرد کو پکڑ کر کہیں گی کہ ہم اپنی روٹی کھائیں گی، اپنے کپڑے پہنیں گی، تو ہم سب سے صرف اتنا کر کے ہم تیرے نام سے کہلائیں تاکہ ہماری شرمندگی مٹے۔ کیا تھا یہ؟ وہ بھائی جو کہہ رہے ہیں نا باپ کہ شرمندگی ہو رہی ہے، غصہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، بچا کریں ایسی طریقوں سے۔ تب خداوند کی طرف سے رویدگی خوبصورت اور شاندار ہوگی، اور زمین کا پھل ان کے لیے جو بنی اسرائیل جیسے بچ نکلے لذیذ اور خوشنما ہوگا۔ جو لوگ خدا کے ساتھ رہیں گے ان کے لیے وہاں کی ساری برکتیں، سارے پھل لذیذ مزیدار ٹیسٹی ہوں گے، لیکن جو خدا کے کلام کو اس طرح سے کریں گے وہ تو انجوائے نہیں کر سکیں گے ایسی چیزوں سے۔ کومپل زینت دار ہوگی، شاندار ہوگی، جلالی ہوگی۔ یہاں پہ کون سا جلال ظاہر ہو رہا تھا بھائی؟ کون سا مسا تھا جس کا ذکر کرتے ہیں آگے؟ وہ یوحنا دے چلے بڑا مسا سی، پتا بھی نہیں ہے مسا کیا ہوتا ہے۔ تیسری آیت غور سے سنیں، یوں ہوگا کہ جو کوئی صہیون میں چھٹ جائے گا، باقی رہے گا، بچ جائے گا، جو کوئی یروشلم میں باقی رہے گا، بلکہ ہر ایک جس کا نام یروشلم کے زندوں میں لکھا ہوگا مقدس کہلائے گا۔ وہ مقدس کہلائے گا جو غلط طریقوں سے مبرہ رہے گا، بچا رہے گا۔ آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم مقدس لوگ ہیں، ہم ایماندار ہیں، دوسرے غیر ایماندار ہیں، جو غلط تعلیم دیتے ہیں، جو کلٹس ہیں، جو بدعتی ہیں، جو دوسروں کو خراب کرتے ہیں، ذہنی مریض بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے۔ بھیڑ چال جس طرح بھیڑ کی جاتی ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، چرواہے کے پیچھے نہیں جاتے۔ ابھی آئے سادہ سادہ باتیں سنا رہا ہوں۔ جب خداوند صیون کی بیٹیوں کی گندگی کو دور کرے گا، سنیں، صیون داؤد کا شہر، بابرکت شہر، تب خداوند جب خداوند صیون کی بیٹیوں کی گندگی کو، ان کے ذہن کو، ان کے رویوں کو، ان کے چال چلن کو، ان کے کریکٹر کو صاف کر دے گا، وہ توبہ کر لے گی، اور یروشلم کا خونی وہ بندہ ہوتا ہے عام طور پہ جو خون کرتا ہے کسی کا قتل کرتا ہے، لیکن یہاں یہ بات نہیں ہے، میں روحانی بات کرنے لگا۔ جو کسی سے نفرت کرتا ہے، جو اپنے آپ کو روحانی سمجھتا ہے، دوسرے کو جسمانی سمجھتا ہے، وہ بھی خونی ہے، کیونکہ یہ میں اور آپ کسی کے جج نہیں ہیں۔ مدر ٹریسا کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو جج کرتے رہیں گے، کسی کا انصاف کرتے رہیں گے، کسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو ہمارے پاس محبت کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ آپ محبت کریں دوسرے سے،
ان کی عزت کریں، انہیں پیار کریں۔ یروشلم کا خون روح عدل اور روح سوزان کے ذریعے سے دھو ڈالے گا۔ کس سے؟ مینو وہ گیت زبور 100 صرف 51 زبور ہے، مینو بچ گناہ دے جمیا میری چنگی طرح دھو دے، میری کر صفائی۔ ہر سال لینڈ سیزن آتا ہے، یہ لینڈ سیزن آنے والا ہے، 17 سے ہم شروع کر دیں گے بدھ سے۔ آئیں اپنے آپ کو دھوئیں، اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں۔ کس سے دھلنا ہے؟ روح عدل سے۔ عدل ہمارے گھروں میں خاندانوں میں بھی نہیں ہے، انصاف۔ روح سوزان سے کے ذریعے، جلن کی روح سے۔ آگ جب نیچے جلائی جاتی ہے نا بھٹی میں، خام مال سے چاندی نکالی جاتی ہے، پھر نیچے آگ جلائی جاتی ہے، اور جب تک جو آگ جلانے والا ہے اسے اس خام مال میں سے اپنی شکل صورت نظر نہیں آتی، وہ آگ نیچے جلاتا رہتا ہے، اور پھر خام مال سے چاندی نکل آتی ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے روح سوزان کے ذریعے سے دھو ڈالے گا، تب خداوند پھر کوئی صہیون کے ہر ایک مکان پر، اس کی مجلس گاہوں پر دن کو بادل اور دھواں رات کو روشن شعلہ پیدا کرے گا۔ تمام جلال پر ایک سائبان ہوگا۔ پھر ہوگا جلال، کنوپی شادیوں میں استعمال کرتا ہے۔ پھر وہ سائبان ہوگا، ہمیں سنبھالے گا، پھر ہم مشکلات پریشانیوں دکھوں سے آزاد ہوں گے، ورنہ اسی میں رہیں گے، پریشان ہی رہیں گے۔ کیونکہ یہ لوگ جو نئے نئے غلط میں لے کے آتے ہیں وہ ہمیں پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ کو فلاں چیز ہے، آپ کو فلاں چیز ہے، دکھاؤں گا کسی دن، لیکن ٹچ دیتا ہوں، ٹھیک ہے انتخاب کو بات۔ خدا کے لوگوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اشعیا باری ہم آپ کو ڈپ کر کے دیتے ہیں، سر غلط طریقہ آ گیا، کرونا کا فائدہ غلط طرح سے اٹھا رہے ہیں۔ چھوٹی ڈسپوزیبل کپ میں ڈالے، روٹی ساتھ دیتے تھے، لیکن اس ڈسپوزیبل کپ میں چند کپوں میں ایسی میڈیسن ڈال دی جاتی ہے کہ لوگ بعد میں دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ پھر انہوں نے خاص جگہ بنائی ہوئی ہے کہ وہاں جا کے کریں، اس لیے کہ آپ کے اندر جو بدروہوں کا کام تھا، جو غلط چیزیں تھیں، وہ صفائی ہو رہی ہے، باہر آپ کو وامٹنگ آ رہی ہے۔ اور ڈالا کیا اس میں؟ کیا ڈالا ہے؟ ایسی دوائی جو نرسز بیٹھی ہوئی ہیں، جس کس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، زہر اس کے گلے میں چلا جاتا ہے، غلط چیز چلی جاتی ہے، وہ ایک میڈیسن دیتی ہے اور اس سے وہ سارا کچھ باہر آ جاتا ہے۔ وہ میڈیسن 15-20 کپوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ صرف سب میں نہیں، اور جو وہ پیتا تھا پھر وہ تڑپنا شروع کر دیتے ہیں، بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، پھر دعا کی جاتی ہے کہ اس کے اندر بلا چیز تھی، جائیں وہاں جگہ بنائی ہے انہوں نے خاص، وہاں جا کے کیا کریں، الٹی کریں، وامٹ کریں، پھر وہ کہتے ہیں جی اندر کی جو گندگی ہے نا، یہ گندگی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کو بھی غلط طریقے سے لوگ پاشٹر استعمال کر رہے ہیں۔ خبردار کسی نے مجھے پاسٹر آپ سے کہا تھا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ان لوگوں نے تباہی کر دیا مسیحیت کی۔ برائے مہربانی ان لوگوں کے پیچھے نہ چلے۔ خدا کے کلام میں یہ جو بات ہے انتخاب یہ دکھانا، ٹھیک ہے، میں انتخاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہر چیز وہ کیچ کرتا ہے۔ پیچھے انتظامیہ بیٹھی ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ میرا ساتھ دیتے ہیں۔ میں صرف کہتا ہوں، کام یہ کرتے ہیں۔ میں نے انتخاب کو کہہ دیا، یہ آپ کو دکھا دے گا، یہ سکرین ادھر ہی لگی رہے گی، آپ کو وہ چیزیں جن کا آپ خدا مجھے معاف کرے کہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں، اس معاشرے میں، خاص طور پر مسیحت میں جتنی بدروہیں ساری مسیحوں میں آ گئی ہیں،
किसी और मुल्क में इतनी है ही नहीं है। और पर्सनस की खिलाया गया है, आज ताकि हमारी दुकानदारी चले। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तब खुदावंद फिर कोई से उनके हर एक मकान पर उसकी मजलिस का ऊपर दिन को बादल, धुआं रात को रोशन शोला पैदा करेगा। तमाम जलाल पर एक साइबान होगा और एक खैमा होगा, जो दिन को गर्मी में सायादार मकान और आंधी और झड़ी के वक्त आरामगाह और पनाह की जगह होगी। 3 बातें याद रखें। तस्लीम जरूर कर लिया करें। तस्लीम करना किसी चीज को, मुझसे गलती हो गया, मैं तस्लीम करता हूं जी कि गलती हुई, तस्लीम किया करें, इकरार किया करें। इकरार बहुत जरूरी है। तस्लीम किया करें, इकरार किया करें, और आखिरी बात जो हम एक दूसरे पे नहीं करते, एतबार किया करें। क्या? हमें एतबार ही नहीं है। खुद घर में फारग बैठे होते हैं, बीवी बेचारी जाके काम करती होती है, 10 मिनट लेट हो जाए, कितने समय की भाई, खुद जाके कमा, मेहनत कर। वो मेहनत करने के लिए गई है, अब तो उस पर एतबार भी नहीं करता। मैं आप सबको कह रहा हूं, मर्द भी ऐसे करते हैं, खवातीन भी ऐसे करते हैं। तस्लीम किया करें, इकरार किया करें, और एतबार वाली गल बोल दे रही, ऊपर से आवाज ही नहीं आई मुझे। एतबार किया करें, एक दूसरे पर एतमाद किया करें, एतबार करें, अपने आप पर करें, खानदान पे करें, और इस असली सही तालीम पर करें, तो गलत तालीमों पर नहीं। यीशु मसीह के पास जब कोढ़ी आया, जो बीमार था, वो उसके आगे झुका, घुटनों के बाद झुका, और उसने कहा अगर तू चाहे ना तो मैं शिफा पा सकता हूं। यीशु मसीह ने उसे पीछे नहीं गिरा दिया, गिराया नहीं, कोई तका मिशन नहीं, कोई छोटे मिशन नहीं थे। यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को, जो बीमार था, जो परेशान था, जो परेशानी लेकर आया था, खुशी से गया था, यीशु मसीह ने उसको कहा शिफा पा जा। कोई लंबी दुआ नहीं, कोई नहीं कहा कि सादा पूरा करी, 7 बारी साढ़े चर्च आई, फिर ठीक होएगा, फिर शिफा पाएगा। कहा कि मैं आपसे दरखास्त करना चाहता, खोले हमारे 32 की इंजील खोले, मरकस की इंजील पहला बाब, थैंक यू। मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी की इंजील पहला बाब 40वीं आयत। मैं नेल्सन ने इस पैसेज को पढ़ा था। एक कोढ़ी, मैं और आप भी बहुत कोढ़े हैं, सच्ची मैं आपको कहता हूं। हमारे अंदर बड़ी बीमारियां, नफरत वाली बीमारियां हम में। एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेकर उससे कहा अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। अगर आप पाक साफ होना चाहते हैं, ये लेंट सीजन में हो जाए, बड़ा अच्छा मौका है आपके लिए। पता नहीं फिर अगले साल होना कि नहीं आना। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ। आप सब लोग चाहते हैं कि ये पाक साफ हो जाए, जो जिन्होंने आपको देखा है, आपने देखा इनको जरूरत है पाक होने की। इनके अंदर बीमारियां, ज़हनी बीमारियां और किस्म की बीमारियां, कोढ़ ऐसी बीमारी जिससे लोग नफरत करते थे और कोढ़ी बेचारा चलाता था कि मैं कोढ़ी पीछे हट के रास्ता छोड़ दें ताकि दूसरों को ना लगे। ठीक है, ये भी वो बीमारी, ये भी कोढ़ है, कोढ़ है, इनसे बचें। आप इनके साथ जाएंगे ना, इनके दरमियान जाकर बैठेंगे, इसी तरह की हो जाएगी आपकी सोच ऐसी हो जाएगी, आपका दिमाग तब्दील हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं तो चाहता हूं, मुझे तो तरस आ रहा है और मुझे भी तरस आ रहा। अगर आपने देखा हो, फिल फॉर उसका कोट जाता रहा, पाक साफ हो गया और उसने उसे ताकीद की कि फिल फॉर उसी वक्त थोड़ा शिफा नहीं मिली इसको, परमानेंट शिफा मिल गई इसको, फौरन मिल गई। और वो गया और उसने क्या कहा,
खुदा उनके कलाम में लिखा है, उससे कहा कि खबरदार किसी से कुछ ना कहना, अपनी बड़ाई ना जाके करना, मेरा इश्तिहार ना ला देना। गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं। इश्तिहार देखे मंजी मंजी जी चारपाई के बड़े बड़े इश्तिहार की पूरी बारगुनी में देखे कभी? दिखा होता इस पे? ये पश्तों का काम है साहब। तालीम गलत, लोगों के दिमाग गलत, कोड़ की बीमारी में मुब्तला कर दिया, ज़हनी बीमारियां हमारे यहाँ आ गई हैं। आपने बचना है। ये फिर आके यीशु जी ने तो बड़ा किया था नहीं करना, तो वो पास्टर ने जाके कहा था कि जाके बताएं कि मैंने शिफा दी है, मेरी वजह से हो गया। यीशु ने कहा किसी को बताना नहीं है, जाएं सलामत जा, शिफा मिल गई है। खबरदार किसी से कुछ ना कहना, बल्कि सिर्फ जा और जो काहिल मुकर्रर है खुदा की तरफ से उसे जाके बता उन चीजों को जो मूसा ने मुकर्रर की हैं। नजर गुजरान, शुक्रगुजारी के दौरान जाके इन्हीं बातों को, इन्हीं आयतों को इस्तेमाल करके अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मफाद के लिए, पर आपको और मुझे समझ नहीं आती और हम भेड़चाल हम पीछे चले जाते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने उसको कहा, भाई ठीक हो गया, तू चल, शिफा तुझे मिल गई है, इश्तिहार ना देना जाके मेरा। चुपके से सिर्फ अपने उस हैकल में, उस चर्च में, उस इबादत खाना में जा जहाँ काहिन है, उसको जाके नजर गुजरान, उसके सामने शुक्रगुजारी की कुर्बानी दे। लेकिन वो भी इधर आकर था, जाकर उसने चर्चे कर दिया, इश्तिहार लगा दिया। जिसने कहा मैं इस तरफ नहीं आऊँगा, और आप फिर बात पर जाते हैं, आपको पता भी चल जाता है। इसलिए मैं खुदा का खादिम होते हुए ये कहना चाहता हूँ, आने में आप इस नेक्स्ट सीजन में, आने वाले सीजन में, मौसमी बहार में अपने चेहरों पे भी बहार लाएं, अपने रवैयों में भी लाएं, अपनी सोच में भी लाएं, और गलत तलीमों को रद्द करें। सही तलीम जो खुदा के कलाम की तलीम है, आज मोहब्बत वाले दिन, वैलेंटाइन वाले दिन इजहार कर लें इस बात का, तस्लीम कर लें इस बात को, इकरार कर लें यीशु मसीह मेरे लिए हुआ, मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा। खुदा मुझे प्यार करता है, मैं हूँ गुनहगार, लेकिन मुझे उसे कबूल करना है। अगर आप अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करेंगे तो वो मुझे और आपको, मेरे और आपके गुनाह को पाक और साफ करने में सच्चा और आदिल है, क्योंकि यीशु मसीह का खून मेरे गुनाह को पाक और साफ करता है। मेरी ये दुआ है कि ऐसे दौर में, जिस दौर में से मैं और आप गुजर रहे हैं, हमारे रवैये से, हमारी सोच से, हमारे किरदार से, हमारी गुफ्तगू से और सही तालीम के मुताबिक चलते हुए लोग बरकत पाएं। खुदा आप सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आए हम दुआ करें, शुक्रगुजारी करें अपने अपने लिए, कलाम के लिए, और ऐसे लोगों के लिए भी दुआ करें जो अबलीस ने झगड़े हुए हैं, और हम खुशी से अबलीस के हाथों में अपने आप को दे देते हैं। कोई भी दुआ कर सकता है शुक्रगुजारी। खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू मेहरबान खुदावंद है, तू हम सब पर दस्त खाता है, हम पर रहम करता है, अपना फजल हम पर नाजिल करता है। तेरी तमाम दी बरकतों बख्शों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे कलाम के लिए, तेरा पाक कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता। और जब खुदावंद हम इस दुनिया में रहते हुए अपने मफाद के लिए इस कलाम को गलत इस्तेमाल करती हैं, तो हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूँ हैं जो खुदावंद तुझे जानते ही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस दुनिया की दलदल में और इन गलत कामों में वो गिरफ्तार हो जाते हैं, और फिर इस तरह की तालीमें जो हैं वो हमारे नौजवान बेटे और बेटियों को खराब करते हैं। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, ताकि हम अपने बच्चों की तरबियत तेरे खौफ में रहकर कर सकें, ताकि हमारे बच्चे बूढ़े होकर भी उस रास्ते से ना मुड़े जो तेरी तरफ जाता है। अपने नौजवान बेटे और बेटियों को अपना डर और खौफ दे, कोई उनकी जवानी की हकारत न करने पाए। तेरे बंदा के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिनके वसीला से हमने तेरे कलाम को सुना। आज का कलाम हमारी जिंदगी में गहरा असर करे और हम दूसरों के लिए बरकत का बायस रहे। तो हमारी दुआ को सुन, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने पुराने सुनसी के वसीला से, आमीन। ज़बूर नंबर 118 गाएंगे। सदा जिक्र है रब सारे रब की, करो रब की शुक्रगुजारी, नेकी निकले सारी, सदा जिक्र है रहमत सारे रब की।
इसी के दौरान अपने हदीये नजराने शुक्रगुजारी के तौर पर ज़रूर गुजारें। ज़बूर नंबर 104। दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं जितने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम अपने हदीये नजराने शुक्रगुजारियाँ तेरे हुजूर गुजराने, इनमें तेरे लोगों की दरख्वास्तें हैं, मन्नतें हैं, शुक्रगुजारियाँ तो अपने ज़रूर कबूल फरमा, इसके जाने वाले वक्त में सबको ढेरों खुशियाँ दे, हाथों की कमाई में बरकत दे और आने वाला
जो नेक्स्ट सीजन है सब के लिए बरकत खुशी राहत तसल्ली का सबब ठहरे। इस सदी की तकदीस करता कि तेरे जलाल की समाल खुदा बाप बेटे रूह के नाम से जमायत बैठ जाए। शहरवाली की तरतीब की किताब सफर नंबर 14। आइए अच्छे सरदार का है जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम सब पर जाहिर कर। आइए सब के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैर की भी तकदीस कर ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु के रूह में बाप के पास हम सबकी रिसाई होती है। खुदा तुम्हारे साथ हो, अपने दिल आदमी वाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस पाक कादिर मुतअल अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन चर्च के लिए, पूरी कलीसिया के लिए, डायसिस ऑफ रायबन के लिए, बिशप ऑफ रायबन के लिए, तमाम अदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों और आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और हमेशा की तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदा रब अल फाज। आलम वाला पर होशाना, वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ अपने इकलौते बेटे यीशु को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर उठाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामल और काफ़ी करवानी नजर और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर। भाई नई बरकत पर, भाई अर्नेस्ट जॉन पर, भाई माइकल पर, मास्टर विलियम जेम्स पर और जितने लोग बीमार हैं, कमजोर हैं, उन सब पर रहम कर। अपनी पूरी आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, कमजोर लोगों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूं तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इस तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नेहत का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बदेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया, हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम हमारा माना जाए, तेरी बात शरी आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है और ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ आज मिले और हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने दें, बल्कि बड़ाई से बचा, उनके बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा करते रहे हैं। आए हम खुदा की मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर करें। आए खुदा हम अपनी राष्ट्रवादी पर नहीं बल्कि तेरी कदम और बड़े राम पर भरोसा करते हैं, तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि तेरे टुकड़े तेरी मेज़ पर छिड़कते हैं जिन्हें, लेकिन खुदा है जिसका खासा हमेशा नश करवाना है, इससे आए कि हम खुदा की बख्श कि हम तेरे मेले जिसका गोश्त जिसका और सिखाएँ और इसका खून इस वजह से पिए कि हमारी खुदा की समझते आए पेश बदल से पाक साफ की जाए।
जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए इत्मीनान की दुआ मांगे और एक दूसरे को कहें, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए। जो लोग अपने आप को तैयार करके लाए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों, दरख्वास्त है कि बड़ी तरतीब के साथ आप इस तरफ से आएँ और जाएँ और इस साइड के लोग यहाँ पे आएँ और बड़ी तरतीब। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रमेंट में शरीक हुए हैं, तो आइए हम सब मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करें और कहें, काबिल मुक़द्दस खुदा, हमारे आसमानी बाप, तू जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद ने बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नायक बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेहत किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो ब्याज से पाए हैं, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नजर गुजराते हैं, ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम शान की हम शक्ल न बने, बल्कि यकीन हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस शाम में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और कुदस के साथ हाय खुदा अब्दुल जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल हमारे खुदा की हो। आमीन। बैठे रहें। अभी कुछ आप दिखाना चाहते हैं? पिछले ये लगा हुआ है आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट, आज ये जल्दी से 2-3 मिनट की है ये, चूँकि इससे पहले जो